اہل بیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اہل بیت کہلاتی ہیں، اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی شخص کو اہل بیت سے بغض ہو، عداوت ہو، تو وہ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو پھر اہل بیت سے بے تحاشا محبت ہوگی۔ میں دو واقعہ اہل بیت سے محبت اور اہل بیت سے عداوت کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو دو واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ عراق کے شہر میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ سید زادے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے تھے۔ اب ان کی بیوی اور ان کے چھوٹے بچے، اب بیوی بیوہ ہو گئی، تو اب وہ وہاں سے عراق سے سفر کر کے سمرقند آتی ہیں۔ سمرقند آنے کے بعد وہ لوگوں سے یہ پوچھتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس شہر کے اندر کون سخی لوگ ہیں، مجھے سخی کے بارے میں بتاؤ۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اس شہر کے اندر دو شخص ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سخی ہے۔ ایک تو اس شہر کا پادری، وہ بہت ہی زیادہ سخی ہے، اور دوسرا اس شہر کا حاکم، وہ بھی بہت سخی ہے۔ تو انہوں نے کہا، سید زادی نے کہا، اس بیوہ عورت نے کہا کہ پادری تو غیر مسلم ہے، اس کے پاس جانا مناسب نہیں ہے، ہم اس حاکم کے پاس چلتے ہیں اور وہ حاکم مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ چنانچہ وہ حاکم کے پاس پہنچتی ہیں اور حاکم سے وہ اپنی فریاد اس کے سامنے رکھتی ہیں کہ میں بیوہ ہوں، میں سید زادی ہوں اور میں آپ کے پاس تعاون کے غرض سے آئی ہوں۔ تو وہ حاکم وقت ان سے یہ کہتا ہے کہ تم کوئی ثبوت پیش کرو، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سید زادی ہو۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، میں کیسے آپ کو بتا سکتی ہوں، کیسے ثبوت لا سکتی ہوں۔ تو خیر وہ اسے دھتکار کر کے بھگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ہر کوئی آ کر کے اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے، میں کس پہ یقین کروں، چلی جاؤ یہاں سے۔ خیر اب لاچار ہو کر کے وہ خاتون، وہ سید زادی اس پادری کے پاس جاتی ہیں اور پادری سے یہ کہتی ہیں کہ میں سید زادی ہوں اور میں تعاون کے غرض سے آپ کے پاس آئی تھی۔ تو خیر وہ بھی پادری بھی ایک سخی شخص تھا، وہ اندر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ باہر ایک سید زادی آئی ہوئی ہیں، تم ان کا اکرام کرو، اس کو گھر میں لے جاؤ اور ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ان کو مہمان بناؤ۔ چنانچہ وہ پادری کے گھر کے اندر وہ مہمان بنتی ہیں۔ اب واقعہ یہ ہے کہ رات کے وقت حاکم وقت کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم وقت نے دیکھا کہ ایک سونے کا بنا ہوا عالیشان محل ہے اور اس دروازے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حاکم وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محل ایمان والے کا ہے، جو ایمان والا ہوگا اسے یہ محل عطا کیا جائے گا۔ اب وہ حاکم وقت کہتا ہے کہ میں تو ایمان والا ہوں، تو یہ محل ہمیں عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حاکم وقت سے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرو۔ جس طریقے سے اس نے سید زادی سے ثبوت مانگا تھا، اسی طریقے سے اب خواب میں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرو۔ اب اس وقت وہ حاکم کہتا ہے میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طریقے سے بھگا دیتے ہیں جس طریقے سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اس فرد کو، سید زادی کو، اپنے دروازے سے بھگا دیا تھا۔ اب حاکم وقت بیدار ہوتا ہے، اب وہ بہت پریشان ہے
कि ये मैंने क्या कर दिया। अब उसे मालूम होता है कि वो जो सैयदजादी है वो पादरी के पास मेहमान बनी हुई है। वो दौड़े दौड़े पादरी के पास जाता है आधी रात में और दरवाजे को दस्तक देता है, और वो पादरी जब बाहर आता है तो उससे वो हाकिम वक्त कहता है कि वो जो मेहमान तुम्हारे घर है उसे हमें दे दो, हम उसे अपने घर मेहमान बनाना चाहते हैं। तो वो पादरी कहता है कि क्या तुम ख्वाब देख करके आ रहे हो? जो ख्वाब तुमने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा, और मैंने भी देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महल के बाहर तशरीफ फरमा है, और मैं वहां पे जाता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये महल ईमान वाले का है, और तुमने मेरी बेटी को अपने घर के अंदर पनाह दिया है, इसलिए मैं तुम्हें ये महल अता करता हूं। और इस तरीके से वो पादरी कहता है कि मैं और हमारे घर वाले सब लोग ईमान ला चुके हैं, मैं मुसलमान हो चुका हूं। तो ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का इकराम करने से एक गैर मुस्लिम को, एक पादरी को ईमान की दौलत अता फरमा दी गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के एक फर्द के साथ जो है नाजेबा सुलूक करने की वजह से एक ईमान वाला, एक सखी हाकिम वक्त को वो धुतकार दिया गया। इसी तरीके से इससे भी ज्यादा बहुत ही मशहूर वाकया है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कौन नहीं वाकिफ है? अपने जमाने के वो औलिया अल्लाह में से हैं, और औलिया अल्लाह के सरदारों में से हैं। जो भी ईमान वाला होगा, मुसलमान होगा, वो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जरूर वाकिफ होगा। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पहले जुनैद जुनैद नहीं थे, बल्कि वो एक बादशाह के दरबार के पहलवान थे। वो अपने जमाने के एक बहुत बड़े पहलवान हुआ करते थे, और कोई भी पहलवान कुश्ती में अभी तक हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को कभी पछाड़ नहीं पाया। एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स बादशाह के पास आता है और कहता है कि आपके दरबार का जो पहलवान है, मैं जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूं। और वो शख्स जो कुश्ती लड़ना चाह रहा है वो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही लागर है, बहुत ही कमजोर शख्स है। अब बादशाह देख करके हैरान होता है कि ऐसा कमजोर शख्स और वो जुनैद से क्या कुश्ती लड़ेगा। जुनैद को तो आज तक बड़े से पहलवान ने जो है उसे पछाड़ नहीं पाया। ये एक कमजोर और एक लागर शख्स, ये जुनैद को किस तरीके से जो है कुश्ती का चैलेंज पेश कर रहा है। लेकिन उस शख्स ने बहुत ही ज्यादा इसरार किया तो बादशाह तैयार होता है, और उसके बाद एक बहुत बड़े मैदान के अंदर एक महफिल सजा दी जाती है। बादशाह, उसके मसाहिब, उसके वज़रा और बड़े बड़े पहलवान और शहर की आवाम वहां पे इकट्ठा होती है, जमा होती है, और हजरत जुनैद बगदादी जो कि उस वक्त सिर्फ जुनैद हैं, वो मैदान में आते हैं। अब वो शख्स, वो जो लागर शख्स है, वो हजरत जुनैद के पास जाता है और चुपके से उनके कान में ये कहता है कि ऐ जुनैद सुन लो, मैं आले मोहम्मद हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का एक फर्द हूं, मैं बहुत ही मिस्कीन हूं, मैं बहुत ही गरीब हूं, और मैंने कई रोज से खाना नहीं खाया है, मेरा फाका है। मैं इस वजह से आया हूं ताकि मैं तुझे पछाड़ करके बादशाह से इनाम हासिल करूं। आज तुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के इस फर्द की लाज रखनी है। हजरत जुनैद ये सुनते हैं, उनके पांव तले से जमीन खिसक जाती है, और इस तरीके से हजरत जुनैद वो उनसे कुश्ती लड़ते हैं और गिर जाते हैं। वो उनके सीने पे सवार हो जाता है। बादशाह को यकीन नहीं आता कि इतना कमजोर शख्स हमारे इस पहलवान को कैसे पछाड़ सकता है, कैसे गिरा सकता है। चुनांचे वो फिर से हुक्म देता है कि फिर से कुश्ती, दोबारा कुश्ती की जाए। दोबारा कुश्ती होती है, फिर हजरत जुनैद वो जमीन पे गिर जाते हैं। फिर वो शख्स, वो लागर शख्स उनके पीठ पे सवार हो जाता है। बादशाह को फिर यकीन नहीं आता, फिर दोबारा वो हुक्म देता है कि फिर से कुश्ती करवाई जाए। तीसरी दफा फिर हजरत जुनैद वो गिर जाते हैं और वो शख्स उनके सीने पे सवार हो जाता है। अब बादशाह लाचार उनको बहुत ही ज्यादा इनाम और इकराम के साथ उसको रवाना कर देता है। तन्हाई में हजरत जुनैद को बादशाह बुला करके कहता है कि बताओ माजरा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा था। तो हजरत जुनैद वो रोने लगते हैं और बताते हैं
कि वो हमारे हुजूर के घर का एक फर्द था, निहायत मोहताज, निहायत मिस्कीन और बहुत ही गरीब, कई दिन का फाके से था वो। उसकी गैरत ईमानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का जो उसके अंदर जो खून है, उसको इस चीज पे पसंद नहीं, उसको ये चीज आई कि वो आपके सामने आकर के वो हाथ फैलाता, आपसे मदद तलब करता। उसने हमें कुश्ती में पछाड़ा और इनाम और इकराम लेकर के वो अपने घर वापस गया है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुनैद से बहुत ही खुश हैं और उसके बाद ये वाक़या पेश आता है कि हजरत जुनैद महल से निकल जाते हैं और वो फुकरा की तलाश में निकलते हैं, वो गुरबा की तलाश में निकलते हैं और अपने मामू के पास जाते हैं और वो अपने जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनसे वो बैत होते हैं और फिर उन्होंने वो मकाम और वो मर्तबा हासिल किया जो कि आज जमाना और दुनिया जानती है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत क्या शख्सियत थी, उनकी जात क्या जात थी। तो ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलादों के साथ, अहले बैत के साथ मोहब्बत के नतीजे में नवाज दिया गया। और जिसने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, जिसने अहले बैत से कीना और कपट रखा, वो शख्स जो है दुनिया के अंदर भी धुतकारा गया है और आखिरत तो उसकी काली ही है, आखिरत तो उसकी सियाह ही है। इसलिए मेरे भाइयों, अहले बैत से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मोहब्बत रखो, वो तुम्हारे ईमान का एक हिस्सा है। अगर तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान में सच्चे हो तो फिर अहले बैत से भी मोहब्बत तुम्हें रखनी पड़ेगी। तुम्हारे ईमान का वो हिस्सा है, तुम्हारे ईमान का वो एक जुज़्व है।